یوسف جی خالد بھائی فرمائیے گا موجودہ سیاسی صورتحال پر ایم کیو ایم کا کیا بیانیہ ہے؟ حکومت اور مخالفین اپوزیشن سے آپ کی ملاقاتیں رہی، کیا طے پایا؟ ایم کیو ایم نے کیا طے کیا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جانے کا ارادہ ہے یا حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ موقع دینے کا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ گو کہ گزشتہ 50 سال سے لیکن گزرے ہوئے 15 سالوں میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس پر گزشتہ 2-3 سال سے خاص طور پر ایم کیو ایم سندھ کے شہری علاقوں سے ہونے والی زیادتیوں، ناانصافیوں، ظلم کے خلاف ایوانوں میں اور عدالتوں میں آواز بلند کرتی رہی ہے، اور ایوانوں اور عدالتوں کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے احتجاج کا، جلوس اور جلسوں کا، ریلیز بھی ہم کرتے رہے ہیں اپنے مطالبات کو لے کر کہ حکومتیں، خاص طور پہ سندھ حکومت، ہمارے ان مطالبات کو سنیں اسی لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پر قبضہ کرنے نہیں گئے تھے گزشتہ 26 جنوری کو، اپنے مطالبات کو لے کے گئے تھے تاکہ ہمارے مطالبات کو سنا جا سکے۔ اب کسی بھی وجہ سے اگر یہ ریئلائزیشن آئی ہے کہ یہ مطالبات سنے جائیں تو ہم نے سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے مطالبات کی ایک یادداشت پیش کر دی ہے۔ میں آپ کے کیمروں کے ذریعے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ہی کوئی اتحاد ہوا ہے، نہ ہی کوئی معاہدہ، نہ ہی حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ۔ ہم نے، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ گزشتہ کئی سال سے ایم کیو ایم اپنے مطالبات کو لے کر، وہ مطالبات جو سندھ کے شہری علاقوں کے تھے، ہم احتجاج کر رہے ہیں اور چاہتے تھے کہ حکومت وقت، خاص طور پر سندھ حکومت، ان مطالبات کو سنے، سمجھے اور اس پر عمل کرے اور تسلیم کرے۔ ہم مطالبات کو سنانے اور منوانے کے لیے نکلے تھے۔ اب وہ جب سننے کو تیار ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں، اس کی یادداشت پیش کر دی ہے، وہ معاہدہ نہیں ہے۔ اب ان کی جانب سے اگر یہ جواب آیا ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ مطالبے جائز ہیں، تو ہم تو بڑا دل کر کے یہی سمجھیں گے کہ ان کو ریئلائزیشن ہے اس بات کی۔ اب جبکہ مطالبات جائز ہیں، زیادتیوں کا تعین ہو گیا ہے، جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اور ان مطالبات پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی میکینزم تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم بیٹھیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ بھائی آپ کے ساتھ تو کئی بار معاہدے ہوئے ہیں، کئی بار آپ کے ساتھ اتحاد ہوا ہے، پھر آپ کو دھوکہ دے دیا جائے۔ جناب علی، ہمارا کام اور ہمارا فرض، وہ لوگ جن کی ہم 35 سال سے نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ، حق پرست، جو ہر اچھے برے وقت میں ہمارے، آپ نے مشکل سے مشکل وقت پر، جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار تھا، اس وقت بھی آپ نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ دیا ہے۔ جب ایم کیو کا نام لینا اور ایم کیو کو سپورٹ کرنا ملک دشمنی، غداری اور
सजा समझी जाती थी, उस हम ये समझते हैं कि जमहूरियत के लिए जितनी ज़रूरी हुकूमत है उतनी ही अपोजिशन है। तो हम तमाम लोगों से ये भी दरख्वास्त करते हैं कि हम पाकिस्तान में अपोजिशन के किरदार को वसी करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत अंदाज में चाहते हैं, और हम चाहते हैं ये किरदार हम अदा करें। अली भाई ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस मौके पे ये इदराक क्यों हुआ कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, जबकि ये बात तो बहुत पहले से आप आवाज़ उठाते रहे हैं। दूसरे ये कि आप 10 साल तक ये बताते रहे हैं राय अम्मा को कि पीपल्स पार्टी एक बड़ेरा जमात हो जो सिंध के शहरी इलाकों का हक मार रही है। अब अगर आप उन पर भरोसा करने जा रहे हैं तो अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को राय मेरी इतनी लंबी गुफ्तगू में भरोसे का लफ्ज़ ही नहीं आया है। आपके अगर अंदेशे हैं कि वो बात नहीं मानेंगे तो फिर आप भी हैं, हम भी हैं, रोड भी है, आवाज़ भी है, नारे भी हैं, एहतजाज भी है। हम थोड़ी कोई हम तो हुज्जत तमाम कर रहे हैं, अपने मुतालबा लेके गए हैं। अगर वो कह रहे हैं मुतालबा सही है तो हम नहीं कहेंगे आप ये मुतालबात गलत हैं, आप सही क्यों मान रहे हैं। हमारे मुतालबात है ना, वो कह रहे हैं सही है तो हम कह रहे हैं सही है तो इम्प्लीमेंट करें। वो इम्प्लीमेंट पे तैयार है तो उनको मौका देंगे ना। धोखे का वक्त तो पहले बाद में आएगा। वो धोखा इसलिए नहीं है कि हम एतबार कर लें, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अब वो इस मौके पे क्यों कह रहे हैं, ये मेरा ख्याल है आप लोग से ना हम बच सकते हैं ना वो बच सकते हैं। ये मुतालबा रख दीजिएगा उनका सवाल। मौजूदा सियासी सूरत हाल है, एमक्यूएम की पूरी लीडरशिप उसको बड़ी बारीक बीनी से देख रही है और आपकी सियासी बसीरत भी एक अहमियत रखती है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में कहीं जमहूरियत को खतरा नजर आ रहा है? जनाब, हमारी दरख्वास्त यही थी, और इस हवालों से जिस तरह आपने कहा है कि जहां से खड़े कि हम देख रहे हैं, हम वहीं का बता सकते हैं ना। अगर हमें यहाँ से नीला रंग लाल नजर आ रहा है तो हम तो लाल ही बताएंगे। हमें लग रहा है कि खतरे का निशान लाल है और इसमें सबको एहतियात करनी है। मुल्क ऐसे हालात में पहुंच गया है, फाइनेंशियल स्पेस से लेकर और जमहूरी स्पेस तक सब महदूद होती जा रही है वक्त के साथ साथ। अगर सब ने जिम्मेदारी पूरी तरह ना की तो फिर जमहूरियत कई बार उसको नुकसान पहुंचा है और पहुंच सकता है। इसीलिए तमाम तर तनकीद के बावजूद हम कहते रहे, हम गुज़िश्ता दिनों हुकूमत से बल्कि कई दिहाइयों से ऐसे मौके पर एमक्यूएम को ज़रूरत पड़ी है जब एमक्यूएम को बुर्दबारी से वो फैसला करना था जिसमें हुकूमत बनाने से ज़्यादा जमहूरियत बचाने का मामला था। खालिद भाई ये फरमाइएगा कि जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है जिसके साथ आप 3.5 साल इत्तेहादी रहे हैं, सिर्फ 1.5 बरस उनका अरसा रह गया है, इतना मकबूल भी नहीं है, महंगाई के हवाले से बड़े बदनाम है मौजूदा हुकूमत। तो ये जो अपोजिशन है कि आप भी अगर अपोजिशन के साथ जाते हैं तो ये क्या मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान को, पीटीआई को सियासी शहीद करार देने के मुतरादिफ नहीं होगा इस मौके पर, या इस हवाले से कोई और मजीद? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैंने आपसे जो बात की है कि जो मुतालबात रखे गए, और मुतालबात क्या हैं, ये सारे हक हैं जो कि छीने जा रहे हैं। इससे एतमाद और अदम एतमाद का कोई ताल्लुक नहीं, ना वफाकी हुकूमत की जानिब से ना इनकी जानिब से। ये बात भी सच्ची है कि उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि हमारे दरमियान एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि इससे ऐसी किसी भी कदम के लिए पहले ऐसे कदम उठाने ज़रूरी हैं जिससे भरोसा कायम हो, गलतफहमियाँ कम हो, यकीन हो सिंध के शहरी इलाकों का कि ये वादे इरादों की शक्ल में सामने आएंगे। तो जहाँ तक आपने कहा है, ये बाकियों को देखना है। हमने तो अभी हालात का जायज़ा ले रहे हैं और ये हमारा हक है। हम यहीं पर एमक्यूएम के कारकुनान से राब्ता कमेटी मैंडेट लेके गई है। हर बदलती हुई सूरत हाल में हम समझते हैं कि हमें वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुज़श्ता 15 सालों से दीवार से लगाया गया बल्कि चुनवा दिया गया है, हमें कंप्रोमाइज़ कर कर हर हालत में उनको रेस्क्यू करना है, फिर रिहेबिलिटेट करना है। तो ये वाले हालात हैं सिंध के शहरी इलाकों के। ये भी फरमा दीजिएगा कि आप पर माजी में ये लोगों की कयास आराइयाँ थी या इल्ज़ाम लगाया गया या कोई मफरूज़ा था कि आपके ऊपर दबाव आता था और टेलीफोन कॉल के ऊपर एमक्यूएम सेट हो जाती थी, तो इस किस्म का कोई आप पर कोई दबाव या किसी किस्म का कहीं से प्रेशर है इस दौरान? मेरे भाई, ये भी हम कहते रहे और मैं दोहराऊंगा नहीं कि कौन कौन सी चीज़ें जो बड़ी वाज़ेह हैं और हमने नहीं मानी। दबाव अगर ले रहे होते तो ऑफिस खुल जाते भाई, उसकी भी कीमत ही है ना जो अदा करनी है।
दबाव ले रहे होते तो शायद ज़्यादा साथी अब घर पे होते. दबाव अगर ले रहे होते तो सियासी स्पेस छीनी नहीं गई होती, ना उस पर पाबंदी लगी गई होती. ये तो मफरूज़े हैं. अगर कोई फ़ोन करता रहा होगा तो सुना तो जा सकता है. अमल दरामद कराना हमारा काम, अमल करना हमारा काम है, फैसला करना हमारा काम है. और ऐसा कभी कोई दबाव आया भी नहीं है कि जिसपे कि हमें ये लगे कि ये बात ना मानने से हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे. अच्छा खालिद भाई, जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी तरफ से ये दबाव या ये मुतालबा है शायद कि MQM पहले ऐलान करे, उसके बाद खाफ लीग या जो बाफ है वो ऐलान करे, शायद मौलाना ये मुतालबा तो हुकूमत का भी हो सकता है ना. राफी भाई ओके, आपको ठीक है, ये बताएगा कि आपने बार बार हुज्जत तमाम की है, मुतालबात रखे हैं पीपल्स पार्टी के सामने. हर बार जो है वो कहा जाता है कि आप मुतालबात देख रहे हैं और आला क़यादत से बात करेंगे. इस बार तो मुलाकात ही आला क़यादत से हुई है. कोई शर्त रख रहे हैं इस पर अमली तौर पर अमल दरामद कराने के लिए? अरे शर्त तो हुकूमत में शामिल होने के लिए होती है, मुतालबात के लिए शर्त थोड़ी होती है. मुतालबात तो पहुँचा दिए, ना मानते नहीं मानते, हम फिर रोड पर निकल के वहीं पर बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे होते. उन्होंने कहा मुतालबात तो जायज़ है और मुतालबात जायज़ ही है. अगर हम ये कह रहे हैं कि आपने हमारी बात नहीं मानी, ऐमान ने हमें नहीं सुना, अदालत ने हमें सुन लिया, तो एक अदालत, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत का एक फैसला आ गया है, इस पर इम्प्लीमेंट करें. उनको भी करना है और उस पर किस तरह इम्प्लीमेंट होगा उसके लिए हमने अब कहा हुआ है कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं. हमने कहा है कि 3 लाख नौकरियाँ चोरी की गई हैं. उन्होंने हैरानगी का भी इजहार किया है और कहा है ऐसा है तो इसको एड्रेस करेंगे. तो भाई इसमें तो धोखा खाने की बात ही नहीं है. धोखा देना अलग चीज़ है, धोखा खाना अलग चीज़ है. धोखा देने वाले को हक धोखा देते रहे. हम तो नहीं खा रहे, ना खाने को तैयार है. तो ना हमारी तरफ से कोई यकीन दहानी हो रही है. उन्होंने सुना है टॉप लीडरशिप ने, और मुझे उम्मीद है कि टॉप लीडरशिप ने सुना है, तो उनको भी पाकिस्तान में सियासत करनी है और सिंध में अमन का ज़्यादा फ़ायदा उनका होगा. मैं एक और बात बता दूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को, सिंध के शहरी और दही इलाकों को इत्तेहाद से ज़्यादा, देखिए इत्तेहाद की कुछ वजूहात होती हैं. इत्तेहाद एक अमल का नाम है, फैसले का नाम नहीं है. इससे ज़्यादा ज़रूरत है इख्तिलाफ और इख्तिलाफ राय के आदाब के साथ जीने का सलीका सीखने की. इसीलिए गए हैं. अच्छा, बिलावल को कब दावत दे रहे हैं गाजियाबाद मरकज़ आने की? ये आपकी जानिब से दोबारा दावत चली जाती है. अगर आपने जो हमारी बात सुनी है और जो बात हमसे की है वो आके आप लोगों से भी कर लें और बादराबाद आके कर लें. और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी हौसला अफजा बात जो है वो, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त अपोजिशन की जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसने बड़े देरीना किस्म के मुतालबात जो पहले खुद मानने से उम्मन रिलेक्टेंट होते थे वो लोग, ये हमारी गुफ्तगू, आपकी हमारी जद्दोजहद, बढ़ते हुए पाकिस्तान और मसाइल को समझने की सलाहियत पैदा होते हुए पाकिस्तान में, अब उन्होंने हमारे बहुत सारे मसाइल को सुना है, समझा है. हमारी ज़्यादा उम्मीदें इस बात से हैं. हमने क्या मांगा है आपके ज़रिए बताना चाह रहे हैं. हमने कानून साजी मांगी है. हमने ऐसी कानून साजी मांगी है कि जिसके ज़रिए बुनियादी जमहूरियत को पूरे पाकिस्तान में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए. जिस तरह वज़ीर आज़म के दौर के ख़ात्मे के बाद अबूरी वज़ीर आज़म आता है और 3 महीने में इलेक्शन होते हैं. वज़ीर आला की जगह अबूरी वज़ीर आला आता है, 3 महीने में इलेक्शन होते हैं. इसी तरह मेयर के हटने के बाद अबूरी मेयर आए, 3 महीने की मुद्दत हो, और किसी के पास पाकिस्तान में किसी जी नफ्स के पास ये इख्तियार ना हुआ इनके अलावा कि मुकर्ररा वक्त पर, जिस तरह कौमी और सूबाई के इंतखाबात होते हैं, 3rd टियर के भी, शहरी इलाकों के, दही इलाकों के, यूनियन काउंसिलों की भी इलेक्शन हो एक मुकर्ररा वक्त में पूरे पाकिस्तान में. और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि एक ही तरह निज़ाम के तहत, और वो निज़ाम का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है. खालिद भाई, एक सवाल आखिरी बता दीजिएगा कि तहरीक अदम एतमाद के मौके पर हुकूमत और अपोजिशन इस्लामाबाद में मार्च, जलसे, जुलूस, रैलियां निकालने जा रहे हैं. खुदा न खास्ता किसी किस्म का तसादुम हो, इस हवाले से आप क्या मशवरा देंगे दोनों हुकूमत और अपोजिशन? जी, मैंने मशवरा दिया है, अभी दोबारा दूंगा तो वही हेडिंग बन जाएगी. तो उसके बजाय मैं ये कहना चाहता हूँ
کہ ہمارے بہت سارے مطالبات ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان جب بنا تھا تو یہ مغربی پاکستان 2 کروڑ کا تھا, آج 22-23 کروڑ کا ہے. بہت سارے ڈسٹرکٹ بڑھ گئے ہیں, بہت سارے ڈویژن بڑھ گئے ہیں, اور بہت سارے صوبے بھی بڑھنے چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون اور PDM پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ بالکل جائز مطالبہ ہے, اس کا جائزہ لیں گے اور اس پہ قانون سازی بھی کریں گے. پہلی بات ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک مسئلہ جو ہے جس کو ہم پہلے ہمارے اجداد سمجھانے میں ناکام رہے, لیکن ہم نے یہ گفتگو بڑی آگے تک پہنچائی ہے. وہ متروکہ املاک کا معاملہ ہے جو ہم سے چھین لی گئی, اور زبردستی بھی چھینی گئی ہے اور دی بھی نہیں گئی ہے, اس کا بھی جائزہ لیا جائے. تو یہ 2 بڑے اہم مطالبات ہیں جن کو سنا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے اور جس پہ کام ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے آج کی MQM کو اللہ میاں نے توفیق دی ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والے اور جو اپنا جہاں سے ہم مینڈیٹ رکھتے ہیں وہاں کے مطالبات کے کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو بڑھائے. ٹھیک ہے, تھینک یو.